Yes. Trial balance we are going to start. Before that, whenever I start a new chapter, I always prepare your accounting cycle, because it is one of the steps of your accounting cycle. We always start with identification of the transaction. After identifying, we were recording it. After recording it, and recording मैं journal में किया करती थी. After recording it, we were classifying it, and classifying के लिए हम हमेशा ledger बनाया करते थे. Now we have arrived at summarizing. Whatever balances you have extracted from your ledger account or from your cash book or from your subsidiary books, that balances you will take and you will be preparing a summary of all the balances at one place. So trial balance is nothing else, that is a summary of all the balances, rather closing balance I must say, closing balances extracted from the ledger accounts, bolo, from cash book and from subsidiary books. Cash book का closing balance चाहे वो बैंक कॉलम का है चाहे वो कैश कॉलम का है, that is the closing balance, right? ledger account को आपने close किया और साल के end में जो उसका क्या आया balancing figure आई, that you will be writing in your trial balance. So trial balance is not an account, it is a statement. Once it is not an account, it means कि every item here is to be written without the word to and by. अगर ये account होता तो left hand side पे सारी item मैं to के साथ लिखती और right hand side पे सारी items में by word के साथ लिखती, लेकिन it's not an account, it's a statement, right? जितना मैंने बोला आपको समझ आ गया? At a single place with a single vision, you can come to know what is the balance of a particular item in hand. Like whatever I am writing cash, and I am writing 50,000 in front of it in my trial balance, it means कि आपके पास साल के end में cash in hand 50,000 था. But I must rectify my statement. It is not essential that the trial balance is to be prepared at the end of the year. Usually it is being prepared at the end of the year, but it is not essential that every time you will be preparing it at the end of the year. Sometimes you can prepare it quarterly, sometimes you can prepare it half yearly, मतलब 6 महीने के बाद, and sometimes you can prepare it after an year. ठीक है? It's not an account, it's a statement. It shows a summary. So hereby we are going to refer that summarizing step of my accounting cycle I have arrived. तो इस चैप्टर में मैं अपने कौन से स्टेप पे आ गई हूँ? फोर्थ स्टेप ऑफ माय अकाउंटिंग साइकिल. दो ही तो स्टेप रह गए. वन इज इंटरप्रिटेशन एंड अदर इज, पहला एनालाइजिंग है, ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ही तो रह गया, और लास्ट में कम्युनिकेशन है, वो तो है थ्योरेटिकल, उससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू बी प्रिपेयर्ड. But before that we will be doing the definition and features of trial balance from our book. ट्रायल बैलेंस बहुत सारे फॉर्मेट है, लेकिन हम क्लास में यही फॉलो करेंगे. जो भी डेट दे रखी होगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन, आप वो लिखोगे. अगर सोल प्रोवाइडर का नाम है तो नीचे उसका नाम भी लिख सकते हैं, राइट? हियर बाय नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, नेम ऑफ अकाउंट. नेम ऑफ अकाउंट, इट मे बी रियल अकाउंट, इट मे बी पर्सनल अकाउंट, इट मे बी नॉमिनल अकाउंट. अभी बताती हूँ. यहाँ पे डेबिट वाले बैलेंस होंगे, यहाँ पे क्रेडिट वाले बैलेंस होंगे. इट मींस कि ओवरऑल आई हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स. कई बुक कहती हैं चाहो तो एक सीरियल नंबर का कॉलम भी बना लो ताकि कोई आइटम आपके माइंड से स्किप ना हो जाए. ठीक है, काउंट करके आप आइटम्स यहाँ पे डालेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, whenever you will be preparing the trial balance, its both sides automatically will match if you have put each and every item correctly here. अगर आपने सारी आइटम्स गिन के सही अमाउंट इसमें डाली है तो एंड में दोनों साइड्स इसकी मैच होनी चाहिए. दैट इज अ प्रूफ कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है. और दोनों साइड क्यों मैच होनी चाहिए? बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग which says for every debit there is reverse credit. ठीक है, now the question arises, कौन सी आइटम डेबिट होती हैं और कौन सी आइटम क्रेडिट होती हैं? All assets are to be debited. Am I right? All assets are to be debited. रिवर्स बोलो, all liabilities are to be. आपने खुद ढूंढना है क्वेश्चन पढ़ के कि मैं उसे डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं. All expenses and losses are to be. आपको आता है सारा ये.
ऑल इनकम एंड गेन्स आर, रह क्या गया, रह क्या गया, कैपिटल इज टू बी credited, internal liability, drawings are to be, income tax is to be, because it is drawing, purchases are to be, because it is my expense, bad debt is to be, bad debts is to be debited because it is my loss, bad debts recovered is to be, because it is my income, it's to be credited because it is my income. Mr. John, my debtor, Mr. John, my debtor is to be debited because it is my current asset. Machinery is to be debited because it is my fixed asset. Copyright and patents debited because it is my intangible asset. Asset किसी भी तरह का हो, डेबिट होना भाई, ठीक है. कुछ एक और चीजें हैं, उसने एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देके या डिफरेंट आइटम्स देके उसने हमें नेचर को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. That we will refer later before starting the numerical question, but before that we will be reading the theoretical pages from our book, that is meaning, definition and its feature. ठीक है, चलो जी करते हैं start. So 9th chapter it is. तो 9th क्या है फिर? Journal proper we are leaving. Yes, it will not be a part of your term 2. That chapter we are skipping. ठीक है, not of much use. मैं कभी भी नहीं करवाती वो चैप्टर. चलिए जी, ट्रायल बैलेंस पहली लाइन में लिखा है डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हुए ट्रायल बैलेंस बनता है. डुअल एस्पेक्ट क्या है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट. फॉर एवरी डेबिट देयर इज रिवर्स क्रेडिट. तो एक तरह से चेकिंग भी हो जाती है कि आपने लेजर अकाउंट सही बनाए. जितना रेंट के अकाउंट का टोटल है, ध्यान से एक एग्जांपल सुनना. फॉर एग्जांपल रेंट के अकाउंट का टोटल 10,000, ठीक है. इट मींस कि कैश बुक में भी रेंट पेड है, कैश बुक में भी पेमेंट साइड के ऊपर आपने रेंट 10,000 लिखा होना चाहिए. डबल है ना. जब आपने पे किया होगा तो एंट्री आई होगी ना, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश. तो कैश बुक में क्या लिखा होगा? बाय रेंट. और रेंट अकाउंट में क्या लिखा होगा? टू कैश. तभी तो बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 आई. So by following the double entry concept, we just want to check the authenticity of our ledger account. क्या हमारी सारी एंट्रीज ठीक हुई हैं कि नहीं. अब गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कैश बुक में 10,000 ही लिख दिया, एक क्लरिकल मिस्टेक हो गई, आपने कैश बुक में बाय रेंट 10,000 लिखा है, रेंट के अपने अकाउंट में टू कैश, क्लर्क से जल्दी जल्दी में एक लास्ट वाली जीरो स्किप हो गई, उसने 1000 लिखा. सो ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ 9,000. एक अकाउंट में आपने उसी अमाउंट को 10,000 से लिखा है, उसी एंट्री के एक अमाउंट को, और दूसरे अकाउंट में आपसे एक जीरो स्किप हो गई. इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच बिकॉज इट इज एन एरर. So whenever the trial balance is not matching at the end of the period, it means that certain errors are being committed on the part of our accountants, on the part of our clerk. That's why we get our books of accounts checked by CA. टैक्स की पेमेंट करने से पहले हम अपने सीए को बुलाते हैं, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, वही वो बंदा है जो गलतियां ढूंढेगा. ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की मिसमैचिंग इज अ हिंट कि कहीं ना कहीं हमारे से गड़बड़ हो गई. ठीक, चलें आगे. चलिए जी, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. ट्रायल बैलेंस का मीनिंग देखिए, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स. कौन से लेजर अकाउंट्स? विच वी प्रिपेयर, दैट कैन बी द रियल अकाउंट, दैट कैन बी एनी नॉमिनल अकाउंट, दैट कैन बी एनी पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में मैं क्या क्या बना सकती हूँ? मेरे डेटर्स के लेजर अकाउंट, मेरे क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट, इजंट इट. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी मैं बना सकती हूँ. तो किसी भी लेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस है, जब उसको एक जगह पे लिखा जाता है, उसकी समरी तैयार की जाती है, उसे ही ट्रायल बैलेंस कहते हैं. जिसके कहता दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, वन इज डेबिट बैलेंस एंड अदर इज क्रेडिट बैलेंस. और साथ में कैश बुक का बैलेंस भी हम उठा लेते हैं और उसको भी इसी समरी में लिखते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं. इसके दो कॉलम होते हैं, आपके सामने फॉर्मेट है. ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू कॉलम्स वी हैव टू राइट द अमाउंट in two columns. One is what debit column and other is what credit column. Debit में क्या क्या आना है? Debit में क्या क्या आना है? All assets, all expenses and losses, और बस, और तो कुछ नहीं डेबिट में आना. All asset expenses and losses ही आना, और तो कुछ नहीं आना.
हाँ चलो ड्रॉइंग्स ठीक है। क्रेडिट में क्या क्या आना है? ऑल लाइबिलिटीज, ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल ऑल्सो। ठीक, चलिए जी आगे देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बहुत कम बिजनेसमैन है जो साल में 12 बार ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। Some of them they will be following quarterly method, some of them they will be following half yearly, and some of them they will be preparing it once in a year. वैसे तो कहता है ये periodically हर महीने बनना चाहिए, लेकिन बहुत कम, because it is a time consuming process. And you know, ये सारा कुछ जो मैं आज आपको बुक में थ्योरी में करवा रही हूँ, पूरा +1 का सिलेबस, ये सारा मैनुअल वर्क है. But nowadays the people they are preparing their ledger accounts and their trial balance with the help of accounting softwares. So many accounting softwares are available in the market. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठ के अपनी डिमांड उसे बताते हैं and accordingly they prepare softwares for you. So with the click on button on your keyboard and on your mouse, you just feed the data in your software. ठीक है, तो ये वहां पे कमांड देनी है prepare trial balance. आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रायल बैलेंस आ जाना है क्योंकि सॉफ्टवेयर इस ढंग से प्रिपेयर्ड है. यू आर गेटिंग मी? ये सारा कुछ पहले हमें मैनुअली पता होगा, तभी हम लोग आगे जाके अगर बिजनेस चलाएंगे तो सॉफ्टवेयर को गाइड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गाइड कर सकेंगे ना कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक, सो दैट्स व्हाई मैनुअल नॉलेज इज मस्ट. डेफिनेशंस देखो, कार्टर के अकॉर्डिंग क्या है? पहली डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. कहां से लिए गए? फ्रॉम लेजर. इवन साथ में लिखना चाहिए था, इट आल्सो इंक्लूड्स द कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक. साथ में सब्सिडरी बुक्स भी लिखना चाहिए था क्योंकि सब्सिडरी बुक्स भी अलग से बनती हैं, उनके भी बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए गए और हम लोगों ने एक समरी तैयार करी. उसी समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं. विलियम पिकल्स की डेफिनेशन भी अच्छी है भाई, देखो क्या. Is it a statement or an account? Is it a statement or an account? Statement. तो पहली लाइन ठीक लिखी उसने. The statement prepared with the help of ledger balances. यहाँ पे लिख दिया ना उसने, at the end of financial year में, साल में एक बार. ठीक है. When does our financial year end? When does our financial year end? 31st March. It means कि usually it is to be prepared on 31st March. Done. विलियम पिकल्स ये कहता है. और एनी अदर डेट. तो उसने अपनी डेफिनेशन को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया. जरूरी नहीं है कि साल के एंड में हो, आप 6 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 3-3 महीने के गैप के बाद भी बना सकते हो. इवन यू कैन प्रिपेयर इट मंथली एज वेल. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट्स प्रिपरेशन डेट. काहे के लिए बनाया जाता है? ताकि हमें पता चल जाए डेबिट साइड क्रेडिट साइड के साथ मैच करती है कि नहीं, कहीं हम लोगों से कोई गलतियां तो नहीं हो गई. और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. इफ बोथ द साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग, then yes, errors की possibility है. एक बात मैं और बोलूंगी, even if it matches, then also there is no 100% guarantee that everything is correct. If it is matching, even then there is not 100% guarantee that it is correct. For example, I purchased goods of ₹10,000. मैंने जर्नल एंट्री कर ली, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. ना मैंने इस ट्रांजैक्शन को परचेसेस अकाउंट में डाला, ना मैंने कैश अकाउंट में डाला. आई थॉरली स्किप्ड इट. तो कहां से गलती ये मिलनी है? ना आपने कैश बुक में इसे डाला, ना आपने परचेसेस अकाउंट में डाला, पूरी तरह से आपके माइंड से ये एंट्री ही स्किप हो गई. तो उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच होगा, बट देयर इज नॉट गारंटी दैट इट इज करेक्ट, क्योंकि आपसे ओमिशन हुई है और वो भी होल ट्रांजैक्शन की. मान लो आप पार्शियली इसे एंटर कर देते, परचेसेस अकाउंट में आपने 2 वाली साइड पे 2 कैश लिख दिया लेकिन कैश बुक में डालना भूल गए, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन. देन योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, क्योंकि हाफ एंट्री की आपने पोस्टिंग कर दिया, दूसरा हाफ आपने ट्रांसफर ही नहीं किया कैश बुक में, देन इट विल नॉट मैच. लेकिन एक ट्रांजैक्शन अगर आप पूरी तरह से भूल गए तो भी गलती है ना. यू आर गेटिंग मी? हु इज गोइंग टू चेक दिस मिस्टेक? CA. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बीइंग recommended that at the end of the year, when you are planning to pay your tax to the government, better to call your CA. He will come and he will check your books of accounts. वो जरूरी नहीं है कि साल के एंड में आए, उसकी विजिट के डेज होते हैं, वो वीकली भी आता है, क्योंकि साल के एंड में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, वो सारी इकट्ठी थोड़ा ना चेक करेगा. वीकली और फोर्टनाइटली he is coming at your place and he is checking your transactions for that 15 days and for that 7 days. ठीक है? So that's why appointment of CA is recommended in order to find the mistakes and errors. चलिए जी आगे चलते हैं. फीचर्स. पहला फीचर क्लियर है सभी को? Is it a statement or account? Done. आगे चलते हैं.
It is neither a part of double entry system nor does it appear in the actual books of accounts. It is usually prepared on a loose sheet of the paper. ये एंड में एक रजिस्टर के पेज के ऊपर बनाया जाता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, मींस ये लेजर के साथ नहीं बनता, मींस ये जर्नल एंट्रीज के साथ नहीं बनता, ठीक है। ये अलग से बनाया जाता है ऑन अ लूज शीट, या तो पेपर के ऊपर एक प्रिंट आउट निकलवा लो या एक रजिस्टर अलग से बना लो जिसके सिंगल पेज के ऊपर ट्रायल बैलेंस बनेगा इन दिस फॉर्मेट। डन, आगे चलते हैं। ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द बैलेंसेस फ्रॉम लेजर अकाउंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। आगे चलते हैं। ये पता सब्सिडरी बुक क्यों नहीं लिख रहा, लेट मी क्लैरिफाई इट, क्योंकि मैंने आपको बताया जब सब्सिडरी बुक आती है तो आप उसका ग्रैंड टोटल उठाते हो। लाइक परचेसेस बुक का ग्रैंड टोटल आया तो कहां पे ट्रांसफर हुआ, परचेसेस बुक का ग्रैंड टोटल आया तो कहां पे ट्रांसफर हुआ, परचेसेस अकाउंट में। इट मींस कि वो लेजर में चला गया ना, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट राइटिंग द सब्सिडरी बुक सेपरेटली। उस दिन भी बात करी थी, योर परचेसेस अकाउंट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेसेस, एंड फ्रॉम वेयर यू गेट द क्रेडिट परचेसेस, फ्रॉम योर परचेस बुक। सिमिलरली व्हेन यू आर एंडिंग अप योर सेल्स बुक, उसका ग्रैंड टोटल उठा के कहां पे जाना है, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। इसलिए ये सब्सिडरी बुक अलग से नहीं लिख रहा है, इज जस्ट राइटिंग लेजर अकाउंट एंड योर कैश बुक। डन, बिकॉज कैश बुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, कैश बुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, वो अलग से ही बनती है, उसका बैलेंस उठाना है दोनों कॉलम्स का, कैश का भी बैंक का भी। इवन अगर ट्रिपल कॉलम बना रहे होते तो डिस्काउंट के कॉलम का भी बैलेंस उठाते और वो यहाँ पे ट्रांसफर करते, लेकिन डिस्काउंट का अलग से लेजर अकाउंट भी बनता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट राइटिंग डिस्काउंट सेपरेटली। आगे चलते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, यू टेल, एट एनी टाइम मींस it can be prepared even monthly basis, it can be prepared even quarterly basis, it can be on the basis of half year, then it can be prepared even at the end of the year, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आपको जब कन्वीनियंट लगता है आप ट्रायल बैलेंस को बना लेते हो, लेकिन आमतौर पे फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बन जाना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस इज मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज कंपल्सरी टू बी प्रिपेयर्ड। डन, आगे चलते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। व्हाट इट मींस, इस लाइन का मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। नॉट मतलब पर्टिकुलर पीरियड इज नेवर बीइंग रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आपने हमेशा इस साल का ही बनाना है, आपने हमेशा एक महीने का ही बनाना है, आपकी मर्जी है, आप इसे कभी भी बना लो। इवन यू कैन प्रिपेयर इट ऑन 15 फरवरी, ठीक है, मिडल ऑफ द मंथ भी आप बना सकते हो, 15 दिन के बाद भी बना सकते हो। सो दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग अ वेरी गुड लाइन फॉर योर नॉलेज, इट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर, it is to be prepared on a particular date, not for a particular period. Means the period is not being decided nowhere in any act or in any law. It is being recommended for the sole proprietors to prepare for a particular period. कहीं पे कुछ नहीं लिखा कि कब ट्रायल बैलेंस बनना चाहिए और कौन से पीरियड का बनना चाहिए, ठीक है। आप इवन 17 फरवरी को बना सकते हो, 20th फरवरी को बना सकते हो, whatever is convenient to you, you can prepare, ठीक है। आगे चलते हैं। It is prepared, yes, very good line, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। It is being prepared to check arithmetic accuracy. Arithmetic accuracy means अपनी गलतियां ढूंढने के लिए we should prepare it. Like if it is matching, both the sides are matching, 99% is assurance that everything is correct. लेकिन even then 1% is a chance that the mistakes can be there. Like when you wholly omit this entry. जब आपने परचेसेस की एंट्री ना परचेसेस अकाउंट में डाली ना कैश अकाउंट में डाली तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, लेकिन एक एंट्री की गलती हुई है ना, यू आर गेटिंग मी। सो ट्रायल बैलेंस आर ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड और इज ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली, मींस मस्ट मैच, दोनों साइड का टोटल, दोनों कॉलम्स का टोटल, साइड तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। सो बोथ द कॉलम्स टोटल शुड टैली विद ईच अदर। पूरा यू आर बीइंग लॉस्ट समवेयर। लास्ट लाइन का मीनिंग आपने मेरे को बताना। दीपांशु, लास्ट लाइन, लास्ट फीचर, पूरा इज सिटिंग पैरेलल टू यू, डोंट फाइंड हिम एट योर बैक। यस, लास्ट लाइन का यस, हाँ बोलो।
यस, लाइन बता चुकी हूं मैं विद एग्जांपल, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो भी जाता है तो भी उस बात की गारंटी नहीं है कि आपने सारा कुछ सही डाला है, गलतियां होने के चांसेस फिर भी 1-2% हैं। इज इट द फीचर ऑफ द ट्रायल बैलेंस? So this line he can pick, he can ask in the form of true or false, या assertion reason बना के भी वो पूछ सकता है, ठीक। सेकेंड टर्म में दोनों चीजें आनी, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, एडवांटेजेस छोड़ दो, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं करनी, क्रॉस लगा दो, लिमिटेशंस भी छोड़ दो। ट्रायल बैलेंस नॉट इंडिस्पेंसिबल, क्या मतलब है इन 3 वर्ड्स का? ट्रायल बैलेंस नॉट इंडिस्पेंसिबल, मेरे हिसाब से इसका मतलब है अगर ट्रायल बैलेंस नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यही मतलब है ना, नॉट इंडिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल क्या होता है कि उलट है, नॉट इंडिस्पेंसिबल नेगेटिव में लिखी दोनों चीजें, नॉट इंडिस्पेंसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल? व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विदाउट व्हिच वी कांट लिव। जैसे बोलते हैं ना, एयर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अस, वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो कहता है इसको कंपल्सरली बनाना नहीं है, फिर किसी एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन एवरी सोल प्रोप्राइटर गोज विद इट, हर सोल प्रोप्राइटर इसे बनाना प्रेफर करता है। क्यों? कहीं पे आपने 100 पेजेस लेजर के टर्न करने हैं बैलेंसेस को ढूंढने के लिए, और कहीं पे वो 100 के 100 बैलेंसेस एक ही पेज पे हैं, तो आसानी है ना, इट्स फॉर आवर कन्वीनियंस कि 100 पेजेस में अलग अलग टर्न करूं और हर लेजर अकाउंट का बैलेंस ढूंढूं और फिर उनका ग्रैंड टोटल निकालूं। ट्रायल बैलेंस में हर लेजर अकाउंट का ग्रैंड टोटल ऑलरेडी करके उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। So though it is not indispensable, but even then we go for it. We recommend, even our accountants and CAs, they recommend the business houses to prepare it. ठीक, देखो पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा। Trial balance is a connecting link between ledger accounts and the financial statements. ये ledger account है एक साइड पे, और इसकी दूसरी साइड पे फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स। इसको बनाने के लिए मेरे पास ट्रायल बैलेंस मतलब टीबी का होना जरूरी। टीबी इज वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन लेजर अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट्स। अदरवाइज फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए आप अगर साल में 10 बार रेंट पे कर चुके हैं तो आपको 10 बार उसका लेजर अकाउंट देखना पड़ेगा, 10 आइटम्स का आपको उसका टोटल करना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके आप अपने फाइनल अकाउंट्स में रेंट एज एन एक्सपेंडिचर लिखोगे। बेटर है कि ट्रायल बैलेंस अगर हो तो ट्रायल बैलेंस में आपको डायरेक्टली उसका ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, ही इज टेलिंग अस दैट इट इज वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन लेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट एन अकाउंट, सबको पता है। इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड लाइन पढ़ो और मेरे को मीनिंग बताओ। हैव आई टोल्ड यू? थर्ड लाइन पढ़ो, थर्ड मतलब 2 वाली, 2 पढ़ो। हैव आई टोल्ड यू अबाउट इट? क्या मतलब है इस लाइन का? चलो क्रिश कुंद्रा बोलो, क्या मतलब है इस लाइन का? Though the financial statements can directly be prepared from the ledger account and the final results obtained even without preparing a trial balance, ठीक है ना लाइन? मतलब इट इज नॉट इंडिस्पेंसिबल। कहता फाइनल अकाउंट्स वैसे तो ट्रायल बैलेंस बनाए बिना भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि हम लेजर से सीधा बैलेंस ले लेंगे, बट इवन देन वी प्रिपेयर इट, but still the preparation of trial balance renders a great help to the enterprise if we consider the objects of preparing a trial balance, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है, you save your time। एक बीच में स्टेप अगर समरी का है, समरी का स्टेप अगर हम स्किप कर देंगे और सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, we can, but it is going to be a great headache for us. So in order to avoid that inconvenience and botheration, better to go with it. So is it compulsory to prepare trial balance? Is the preparation of trial balance indispensable? Is the preparation of trial balance indispensable? No. Even without preparing trial balance, we can prepare our final accounts. आगे preparation है, मैंने आपको फॉर्मेट सारा बता दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं करनी, फर्स्ट फॉलो अप भी नहीं करना, ठीक है। सीधा आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। But before this example, I just want to tell you that format जहां पे उसने items wise कुछ दिया डिटेल। यस, पेज नंबर 10.5 पे आइए, सारी आइटम्स को डिस्कस करते हैं डेबिट्स बैलेंसेस की। 10.5 एंड 6 दोनों देखेंगे पेज।
10.5 and 6 everybody will open. कैश इन हैंड क्या है? डेबिट किया, ठीक है. कैश एट बैंक क्या है? बैंक में हमारा बड़ा पैसा क्या है? डेबिट. एसेट है, डन. बीआर क्या है? क्या है मैं पहले पूछ रही हूँ. एसेट सारे क्या होते हैं? आपने नेचर बोलनी है, फिर डेबिट और क्रेडिट बोलना है, ठीक है. सन्डी डेटर्स क्या है? हु आर माई सन्डी डेटर्स? चलो बोलो आप, मान्या. हु आर माई सन्डी डेटर्स? आपको टर्म्स आनी चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं फर्स्ट चैप्टर की, तो कोई मेरे को डिनाई नहीं करेगा अगर बेसिक टर्म का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से आ रही है सारी बेसिक टर्म्स. बोलो. Who are my Sunday data? सारा सिलेबस लिंक्ड है भाई, अगर पहले चैप्टर आते हैं तो ही आगे वाले समझ आने. Who are my Sunday data? Dipanshu is my debtor, how come? Debtor बोलो, sundry छोड़ दो. Dipanshu is my debtor, how come? I am a business woman and Dipanshu is my debtor. I am writing his name on the debit side of my trial balance. Why Dipanshu is my debtor? Explain it. How and why? Isha बोलो. Why Dipanshu and how Dipanshu is my debtor? I am a business woman. In my books, I am writing his name. Huh? Because yes, listen to her. बोलो. बिल्कुल ठीक है. Because he purchased the goods on credit from me, or I sold goods to him on credit. So the person to whom we are selling the goods on credit, who owe to us, ठीक है ना? Who are liable to pay to us, they are my debtors, and debtors is my asset, current asset. So that's why it is being debited. Accrued income, who will define the meaning of accrued income? चलो सारे terms भी revise होंगी. चलो हर्षिका. Accrued income, it will take a day to define the terms. हाँ, accrued income. बिल्कुल ठीक है जी. इनकम विच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड. ठीक है. I served for a company as an agent, but still my commission has I haven't received. ठीक. पिछले 6 महीने से मैं एक कंपनी के लिए एजेंट का काम कर रही हूं, लेकिन वो 6 महीने की कमीशन अभी मेरे को नहीं मिली. So that commission is accrued in my books of accounts. Which type of asset it is? It is my asset undoubtedly. Which type of asset it is? करंट. भाई क्यों सोच रहे हो इतना? 6 महीने की नहीं मिली तो आने वाले 1-2 महीनों में मिल जाएगी. कंपनी प्रॉमिस टू पे टू मी. ठीक है. इट इज ऑलवेज आवर करंट एसेट. आगे चलते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाउ इट इज माय एसेट? नहीं, हाउ इट इज माय एसेट? जस्टिफाई करो. हाउ एंड व्हाई द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर माय एसेट? अच्छा. Or any other explanation why prepaid expenses are our asset? बोलो, कोई तो लॉजिक बोलो. कभी समझाया होगा मैंने. Why prepaid expenses are our asset? किसी नॉन कॉमर्स बंदे को आपने बताना है कि ये एक्सपेंसेस मैंने एडवांस में पे कर दिए, मेरा एसेट है. एसेट की डेफिनेशन क्या होती है वैसे? सिंपल डेफिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज. which provide us benefit in the future. सिंपल अगर मैं डेफिनेशन ऐसे ही बोलूं लेमैन की लैंग्वेज में. ठीक है. So will my prepaid expenses give me a benefit in future? Yes, it will reduce my botheration. I need not to pay in the future because I have already paid. Electricity का bill my October month is going on. मैंने नवंबर और दिसंबर का भी एडवांस में पे कर दिया, तो I am relieving my botheration of November and December. It is going to give me the benefit in November and December. Am I right? आपने अपने सर्वेंट पीएन या क्लर्क को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है. You will be reaping the benefit in terms of his services. In that context, that advance salary is my asset. तो आपको पता होना चाहिए लॉजिक. एडवांस जो एक्सपेंसेस होते हैं मेरे एसेट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट इन द फ्यूचर. आई एम रिलीविंग माय बॉदरेशंस. राइट. यस. एक मैंने टर्म करवाई नहीं थी पैटी कैश बुक, क्योंकि टर्म 1 का था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाती हूँ उसके बारे में. एक हमारी मेन कैश बुक होती है, एक हमारी पैटी कैश बुक होती है. अब पैटी कैश बुक में मतलब क्या होता है? हर बड़ी कंपनी में या बड़े बिजनेस हाउस में 2 तरह के कैशियर अपॉइंट किए जाते हैं. वन इज हेड कैशियर एंड अदर इज पैटी कैशियर. पैटी कैशियर इज ऑलवेज बीइंग रिस्पांसिबल टू इंकर द एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट. छोटे मोटे खर्चे करने के लिए
हेड कैशियर को हम बॉदरेशन नहीं देते, हम उसके अंडर एक असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं जिन्हें पेटी कैशियर कहते हैं। रिक्शा टेम्पू के थ्रू सामान आया, 500 रुपया उसका बिल बना, हेड कैशियर के ऑफिस में वो बंदा नहीं मांगने जाएगा, पेटी कैशियर उसे देगा। ठीक है, कोई कस्टमर आया, उसे चाय पानी पिलाया, 50 रुपए की चाय आई, 20 रुपए के सैंडविच आए, ओवरऑल 70 रुपीज बिल बना, तो 70 रुपीज वो पेटी कैशियर देगा बिकॉज इट इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ स्मॉल अमाउंट. So how the system will work? Petty cashier at the beginning of every month will hand over certain amount of cash to the petty cashier. उसे बोलेगा 1000 रुपया रख ले, हमें लगता है कि 1000 से तेरा सर जाएगा, ठीक है, और छोटे मोटे खर्चे तूने ही करने हैं और महीने के एंड में मेरे को सारा रिकॉर्ड दे देना. ठीक है, मान लो उस महीने में खर्चा ही 970 हुआ, 30 रुपए उसके पास है. अब हेड कैशियर उसे बोलेगा 970 हुआ ना, 30 रुपए तेरे पास पड़े, 940 और ले ले क्योंकि मेरे को लगता है हमारा 970 में सर जाएगा. तो जितना बैलेंस है उससे वापस नहीं लिया जाता, जितना उसका खर्चा पिछले महीने में हो गया है उतने पैसे उसे और दे दिए जाते हैं so that he can manage for the next month. What is the meaning of petty cash here? Nobody will wait. What is the meaning of petty cash here? That is the cash in hands of petty cashier. पेटी कैशियर के पास उस मंथ के एंड में जितना कैश बच गया वो भी तो हमारा एसेट है. If cash in hand is my asset, so definitely petty cash is also my asset. Being an asset, it is to be debited. Rest of the things we will continue tomorrow.